औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर की इंग्लिश बुक से एक लेसन है, लेसन नंबर 5, द लास्ट लीफ। उसके क्वेश्चंस और आंसर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। सवाल का मतलब ये है कि ये जो कहानी है द लास्ट लीफ, इसका थीम बयान करें। तो इसका आंसर है, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग। द स्टोरी स्टार्ट्स with the description of art and painting. Sue, Jhansi and Berriman, the three main characters in the story, are artists. Through this story, the writer tells us that art is very much important because it can give hope and new life to the dying persons. Okay, question number 2 is, How did Sue and Jhansi become friend? सवाल का मतलब ये है कि सू और जॉन्सी किस तरह दोस्त बन गए। तो इसका आंसर है, सू एंड जॉन्सी met at a restaurant, and when they discovered that they liked the same kind of art, the same kind of food and the same kind of clothes, they became friends and decided to live and work together. Question number 3. She has a chance if she wants to live. उसके पास एक चांस है, एक मौका है अगर वो रहना चाहती है तो। If people don't want to live, अगर लोग जिंदा नहीं रहना चाहते, I can't do much for them, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। What do these words of the doctor about Jhansi mean? झांसी के मुतालिक डॉक्टर के इन अल्फाज का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है, These words of the doctor about Jhansi mean that Jhansi has a little chance of life because she has lost hope. If a person looks at the dark side of a picture and has lost hope of recovery, a doctor cannot do anything in such situations. Okay, question number 4. Why did Jhansi keep asking Sue to open the curtains? सवाल का मतलब ये है कि जॉन्सी बार बार सू को ये क्यों कहती है कि पर्दे को खोल दो। तो इसका आंसर है, Jhansi kept asking Sue to open the curtains so that she might look at the falling leaves of the trees. She was seriously ill and had lost all hopes of survival. She was of the opinion that with the fall of the last leaf, she would also die. Question number 5. How was Jhansi's life saved? सवाल का मतलब ये है कि झांसी की जिंदगी किस तरह बचाई गई। तो इसका आंसर है, Jhansi was seriously ill and had lost all hopes of recovery. She was of the opinion that with the fall of the last leaf, she would also die. But Berriman painted a leaf on the ivy creeper in order to encourage Jhansi and to give her hope that she would recover and survive like the leaf. Thus, she regained hope and recovered from her illness. Okay, question number 6 is, what made Jhansi's view change about life? How do you know it? यानी what made Jhansi's views change about life? झांसी की जो व्यूज थे जिंदगी के मुतालिक, वो किस तरह तब्दील हो गए। How do you know it? और आपको इसका किस तरह पता चला। यानी इसके अंदर 2 सवालात हैं। तो इसका आंसर है,
The incident that changed Johnson's views about life was that the last leaf was still there. Despite of harsh winds and heavy rain, this incident raised her spirits and gave her new life. We come to know about it when she starts eating and puts on her spectacles. Okay, question number 7. Write a short character sketch of the character Berryman in the story The Last Leaf. ये जो कहानी है द लास्ट लीफ, इसमें बैरमन के कैरेक्टर का खाका बयान करें, यानी उसको मुख्तसरन हमने बयान करना है, उसके कैरेक्टर के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने बयान करनी है। अच्छा, तो इसका आंसर है Berryman is an important character of the story The Last Leaf. He is over 60 years of age. He is a painter who lives on the ground floor beneath Sue and Jancy's studio. He has been painting for 4 decades without any commercial success. यानी वो पेंटिंग करता रहा है 40 साल से, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिली है। He is a very noble and kind-hearted man. When he comes to know that Jancy has lost hope and will die if the last leaf on the tree fell down, he goes in the stormy night, तूफानी रात को वो निकलता है, and paints a realistic looking green leaf, और हकीकत की तरह दिखाई देने वाली एक पत्ते को वो पेंट करता है। As a result, he catches pneumonia, और इसके नतीजे में उसको नमूनिया की बीमारी लग जाती है, एंड डाइज, और वो मर जाता है, बट सेव्स जॉन्सीज लाइफ, लेकिन जॉन्सी की जिंदगी को वो बचा लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब द प्लॉट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. अपने अल्फाज में इस कहानी का प्लाट बयान करें। इसमें मैं आपको एक बात समझा दूं कि प्लाट और स्टोरी के दरमियान एक फ़र्क है। प्लाट वाक़यात के ऐसे कनेक्शन को कहते हैं जिसमें कोई लॉजिक हो, यानी लॉजिकल कनेक्शन उसके अंदर हो, और स्टोरी में लॉजिकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि बादशाह मर गया, मलका मर गई, तो ये स्टोरी है। और अगर मैं इस तरह कहूं कि बादशाह मर गया और उसके गम की वजह से मलका मर गई, तो ये प्लाट है, यानी उसके अंदर एक काज एंड इफेक्ट वाली बात होती है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। द प्लॉट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ इज अ वेल नेट प्लॉट, यानी इसका जो प्लॉट है वो बिल्कुल वेल नेट प्लॉट है, लूज प्लॉट नहीं है। The whole story revolves around the 3 main characters. 3 जो मेन कैरेक्टर है उनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। उसमें सू, जॉन्सी एंड बैरमैन, ये 3 अहम किरदार है। The plot has a conflict, a rising action, climax, falling action and resolution. ये आपने ये बात याद रखनी है कि हर एक कहानी के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा होता है। राइजिंग एक्शन उसको कहते हैं जब ये तनाज़ा या ये झगड़ा शुरू हो जाता है। क्लाइमैक्स उस जगह को कहते हैं जब ये लड़ाई या ये झगड़ा या ये तनाज़ा अपनी उरूज पर पहुंचता है। फॉलिंग एक्शन उसको कहते हैं जब ये झगड़ा, ये मसला वो हल होने जा रहा हो, तो उसको हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं। एंड रिजोल्यूशन उसको कहते हैं जब ये झगड़ा ख़त्म हो जाता है और कहानी दोबारा आराम से चलने लगती है। तो ये इसके प्लॉट के हिस्से हैं। तो द प्लॉट हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, अ राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। जॉन्सी इज सीरियसली इल, जॉन्सी सख्त बीमार है, एंड इज ऑफ द ओपिनियन, और उनका ये ख्याल है दैट विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ शी विल आल्सो डाई, कि इस पत्ते के गिरने से वो भी मर जाएगी। हाउएवर, बैरमैन पेंट्स अ लीफ ऑन द ईवी वाइन and she considers it as the real leaf and recovers soon. However, Berryman catches pneumonia and as a result
he dies. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, what lesson do we get from the story The Last Leaf? इसमें आपने एक बात ये नोट करनी है कि जितने भी हमारे पास राइटर्स है, जितनी भी कहानियाँ हैं, ड्रामाज है या कोई लिटरेचर का जो भी जानरा है, ड्रामा है, नावल है, तो उसके अंदर मल्टीपल थीम्स होते हैं। ये नहीं है कि कोई ये कहे कि सेक्रीफाइस है या लव है या ये है, इसके अंदर अब कई एक थीम्स होते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर अब हम ये देखेंगे कि व्हाट लेसन्स डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी, कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। तो ये सबक ज़्यादातर मॉरल ग्राउंड पर हम लेते हैं। तो मॉरली इसमें हमारे लिए क्या सबक है उसको पढ़ते हैं। इसका आंसर है द लास्ट लीफ इज़ अ हार्ट टचिंग स्टोरी, यानी दिल को लुभाने वाली, दिल को बाने वाली कहानी है। दिस स्टोरी हैज़ मेनी गुड लेसन्स फॉर ऑल टू लर्न, सबके लिए इसमें बहुत सारे लेसन्स है, मॉरल लेसन्स है जो कि वो इससे सीख सकते हैं। इट टीचेस अस अ लेसन दैट वी शुड ऑलवेज सपोर्ट आवर लव्ड वंस इवन इफ वी हैव टू फेस अ बैड थिंग्स इन लाइफ, यानी हमने अपने जिनके साथ हम मोहब्बत रखते हैं, जिनका हम ख्याल रखते हैं, हमने उनको सपोर्ट करना होता है, ख्वाह ज़िंदगी में हमारा सामना बुरे चीज़ों से क्यों ना पड़े। अपार्ट फ्राम इट, इसके अलावा वी आल्सो लर्न द लेसन दैट इट इज़ आर्ट एंड पेंटिंग दैट गिव्स अस होप एंड ब्रिंग लिवलीनेस इन आवर लाइव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सजेस्ट द अल्टरनेट एंडिंग फॉर द लास्ट लीफ, यानी ये जो कहानी है इसका अगर हम मुतबादिल एंडिंग निकालें तो वो क्या होगा। तो इसका आंसर है द राइटर्स एंडिंग इज एक्सेलेंट वन, बट इन माई ओपिनियन द डेथ ऑफ बैरमैन मेक्स दिस स्टोरी वेरी पैथेटिक, यानी राइटर ने जिस तरीके से इस कहानी का इख्तिताम किया है वो नहायत ही बेहतरीन है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बैरमैन है उसकी मौत की वजह से ये कहानी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बन जाती है। सो वी फील सॉरी फॉर हिम because he is a loving and caring man. A Berman were saved by the doctors. अगर अब Berman को डॉक्टर्स बचा लेते in hospital, अस्पताल में, the story would have ended in a happy manner. तो कहानी एक खुशहाल तरीके से जो है वो ख़त्म होती, खुशी खुशी ख़त्म होती। In this way the story would have ended in a different way. इस तरीके से ये कहानी एक और तरीके से ख़त्म होती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।